Sir, अस्सलाम वालेकुम सर, आपका कैमरा उल्टा है, काइंडली उसको थोड़ा सीधा कर लें। आपका कैमरा बिल्कुल जो है ना वो हमें उल्टा नजर आ रहा है। नो इट्स फाइन सर। okay, Ji. In the previous session, we discussed about some essays that are being performed in the animal cell culture, और उसमें हमने एंटिटी एसे और कुछ माइक्रोस्कोपिक एसे की बात की थी और उसके अलावा कुछ स्टेनिंग एसेस का पढ़ा था. Actually, the purpose is that to find out the viability of the cells, how many cells are viable, and if the cells are dying, to make an estimate कि cells जो हैं वो कितने speed के साथ उनकी death हो रही है. And supposedly, if you are performing any if you are checking any cytotoxic effect of new compound, in that case we can adjust it. और हम उसमें MGT assay और जो बाकी हमारे पास माइक्रोस्कोपिक ऐसे थे हमने उस पर एक ब्रीफ से डिस्कशन की थी विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसीजर्स और प्रोसीजर के साथ हमने थोड़ी समझने की कोशिश की थी कि हाउ विल वी डू दैट. इसका प्रिंसिपल क्या है और प्रिंसिपल के बाद हमें कितनी देर के लिए इसमें कितना ड्यूरेशन टाइम ड्यूरेशन कितना रिक्वायर्ड है. Yes, the next one, ये इसको डिस्कस किया था ट्रांसफेक्शन, that is actually the introduction of a new foreign gene into a eukaryotic cell, specifically that would refer to the transfection. और the transfection है इसमें हमारे पास दो किस्म की मैंने बताया था टाइप्स हो सकती हैं. One was the transient and second was stable. और transient के केस में for the time being gene introduced हुई and time being उसने expression दिया and after that that gene will be integrated. And that will be given by the DNases and RNases. You can see that the nucleases should degrade करेंगे. And this in this form, a gene will reside into the cell up to 7 days, and we can measure the expression by 7th day, but we do not run the culture for 7 days. We incubate the culture up to maximum 96 hours, and so that up to 96 hours, this transient gene can give us the maximum expression for this. इसके अलावा हमने कुछ पढ़ा था इसके अंदर अबाउट द स्टेबल ट्रांसक्रिप्शन पढ़ी. ओके गुड. स्टेबल ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हमने थोड़ा सा ये देखना था
Okay, this is the induction of a foreign DNA into the eukaryotic cell, and in this case, the DNA is being integrated into the genome, or that is being maintained as an episomal plasmid. Plasmids का familiar है? What is the episome? Episome is separate entity. Okay, Mahnur, what is What is plasmid? मानो आपने सोच के बताना है चाहे क्लास 10 तक. Question is for you. What is plasmid? सिर्फ एक काम कीजिएगा, ऑनलाइन मोबाइल से मत देखिएगा, ठीक है? सोच लीजिएगा. Okay, plasmid. So episomes, these are episomes कितने हैं आपने? जो DNA के साथ हमारे जीनोम में इंटीग्रेट एक्स्ट्रा जेनेटिक एक टर्म इस्तेमाल होती है epigenetics. What is that? Epigenetics is the regulation of gene by environmental factors. Episome, this is actually the extra chromosomal or extra genomic material that is intact and that may express just like that. जिस तरह बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड F प्लाज्मिड था और restriction plasmids थे, multiple plasmids. So this is the episomal plasmid case में integration of the foreign gene into the chromosomal DNA, or that can maintain its integrity as the episomal plasmid. Yes. So plasmid की insert definition में क्या है? Extra chromosomal DNA. Normally plasmids में वो नहीं करते ना eukaryotes में. तो यहाँ पे हमने episomal के साथ मेंशन करने की कोशिश की कि पूरी उसकी definition एक तो follow नहीं करती because they are not the double standard or they are not the circular one. And in that case, episomal means that they will have an extra effect, extra to the chromosomal part. ठीक है, क्योंकि eukaryotes में normally plasmid mention करते हैं. Long-term maintenance of exogenous DNA in the transfected cell and its progeny. तो इसमें जो चूंकि सेल के क्रोमोसोम के अंदर इंटीग्रेटेड है फॉरेन डीएनए, so that in that case that DNA would remain integrated. It will transfer from one generation to the other generation, and the integrity भी DNA के maintain रहेगी, because in that case nucleases are considering it as a self DNA, useful for the production of recombinant proteins, and this is also useful for the analysis of downstream and long-term effects of the exogenous DNA expression. For example, if you want to study the long-term effects of any gene expression into a eukaryotic cell, in that case we prefer the stable transfection. Transient transfection के केस में हमारे पास चूंकि 7 days से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो हैं जीन डीएनए एक्सप्रेशन जो है उसको स्टडी नहीं कर सकते. एंड एक मिनट, और अगली क्लास से आप कामरान वाली जो सीट है इस पर बैठे करेंगे और एंड में मुझे समराइज भी करके जाएगा कि आज लेक्चर में क्या पढ़ा है. मुझे लग रहा है कि लीस्ट इंटरेस्टेड बच्चा है ना इस क्लास में वो आप है, तो ये नहीं होगा. दे दो. अच्छा, but expression is lower than the transient in case of stable. इसकी क्या रीजन हो सकती है महमूद खान? Why the expression of this gene that is in the form of stable that is lower as compared to transient one? What do you think? Anyone? So for model, yes, person. सर क्योंकि हम इसमें जीनोम का हिस्सा बना रहे हैं, जब उसकी सारे जीनोम की वो प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, उसके साथ ही हमारी ट्रांसलेशन वगैरह होगी, जब उससे मैसेंजर आरएनए बनेगा. लेकिन उसमें क्या है कि मेरा ख्याल है शायद कुछ कहीं ठीक हो, बाद में जीनोम के अंदर हमारे पास जो सेल्स रेप्लिकेट जो डीएनए रेप्लिकेट कर रहा होता है, एक्सप्रेस हो रहा होता है, उसके कंट्रोल्स होते हैं कुछ, जैसे कुछ हाउसकीपिंग थिंग्स होते हैं, सिर्फ वो रेगुलरली जो है वो एक्सप्रेस हो रहे हैं. अगर ये किसी और थिंग की जरूरत नहीं है. अच्छा, तो क्वेश्चन समझ में आया? जी जनाब. कुछ सोचें. Yes. Question is that यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है the expression level is lower than the transient. This one, ये वाला. तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि stable DNA transfection जो है इसका expression level lower क्यों है as compared to the transient one? जीनोमिक जो एक्सप्रेशन है, जो जीनोम का एक्सप्रेशन है, वो सब इंट्राजेनिक और इंटरजेनिक फैक्टर्स के जरिए कंट्रोल होता है. तो इंटरजेनिक फैक्टर्स जो है वो भी इस एक्सप्रेशन पर कंट्रोल करते हैं, लेकिन ट्रांजिट के केस में हमारे पास कोई इंटरजेनिक फैक्टर जो है उसको अफेक्ट नहीं कर रहा. उसके दूसरी जो चीज़ है वो प्रमोटर है. राइट, प्रमोटर जो है, अगर हम लोग नॉर्मल प्रमोटर्स की बात करें तो वो इतने स्टेबल नहीं, जो हम आर्टिफिशियल प्रमोटर ट्रांजिट के केस में बना रहे हैं तो वो जो है हमारे पास ज़्यादा स्टेबिलिटी दे सकता है और ज़्यादा एक्सप्रेशन लेवल. प्रमोटर वाली बात से मैं एग्री नहीं करता. अब सर इसमें तो डिस्क्रीट रेगुलेटरी मैकेनिज्म होते हैं जो बेसिकली हमारे जीनोम सेटअप होता है. जीनोम में हर एक प्रोटीन का रेगुलेटरी होनी चाहिए. एक पार्टिकुलर टाइम की वॉच में वो जीन एक्सप्रेस में प्रोटीन बनाने की है.
लेकिन ट्रांजिट होते हैं इसके बाद आपको रेगुलेटरी फैक्टर नहीं है, क्योंकि हमारे पढ़ाई करें तो ब्रोकली है। दूसरी बात तो ये कि सारे एग्जाम सेटल में पढ़े हुए हैं, तो इसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने वाला नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली एक्सप्रेस करता रहेगा। If they are not the regulators along with the gene, तो फिर तो हमारी बात नहीं करनी। There must be regulators along with this, either in the case of transfection or either in the case of stable one. फीडबैक लग रही है, किसी कंट्रोल करने के लग नहीं होना चाहिए। ये प्रोटीन चाहिए तो जेनेटिक मटेरियल एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। अगर प्रोटीन नहीं चाहिए तो एक्सप्रेस नहीं करेगा। Then आप कुछ लास्ट ऑफ द ट्रैफिक टू ट्रांसलेट मतलब इसमें जो एक्सप्रेशन है वो हेरिडिटरी जीन्स होती हैं कुछ वो वाली सर इसमें नंबर ऑफ कॉपीज की बात है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो that can be same. Question समझ में? सर इट्स वेरी डिफरेंट लाइक हमारे पास टेबल के केस में जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉपीज की हमारे पास इंटीग्रेट हो, लेकिन ट्रांजिट के केस में सेम ही है कि जब तक अगर वो इंटीग्रेट नहीं भी होगी तो हमारे पास एक्सप्रेस हो सकती है, तो नॉन इंटीग्रेटेड कॉपीज में वो हमारे पास इजीली टेबल के केस में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन सर रेप्लिकेशन का साइकिल भी तो होता है, यानी कि जीनोम में 24 आवर्स के बाद रेप्लिकेट करना है। अगर हम जीनोम में ऐड करते हैं तो वो 24 आवर्स के बाद ही करेगा, लेकिन अगर हम लोग ट्रांसक्रिप्ट के केस में उसमें ऐसा कोई सीन नहीं कि कोई रेप्लिकेशन साइकिल नहीं देखा जा रहा, तो ये हो सकता है। This is a bit valid, but still इसके टाइम में इस पे आपने मॉलिक्यूलर सबने पढ़ी है 1 में 2 भी। सर मुझे एक कंफ्यूजन इसमें ये है, जब मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि जो ट्रांजिट डीएनए आई थिंक वो न्यूक्लियस में इंटीग्रेट नहीं करता, वो प्लाज्मिड को साइटोप्लाज्म में कहता है। जब वो साइटोप्लाज्म में रहता है तो उसका एक्सप्रेशन और कंट्रोल जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है। यानी कि आप कह रहे हैं कि ये वजह हो सकती है। तो सर आप लोगों ने मॉलिक्यूलर में एक एग्जांपल पढ़ी थी इसकी यीस्ट के केस में, हम लोगों ने यीस्ट के यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कि जो हमारे पास ट्रांसफेक्शन के केस में तो जो डीएनए है या आरएनए स्पेसिफिकली डीएनए और आरएनए जो है वो हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर हो। ठीक है, अगर साइटोप्लाज्म अंदर भी कंसीडर करना है उसको, तो फिर हमारे पास एक्सप्रेशन लेवल तो वही करेगा। एक्सप्रेशन लेवल वेरी करेगा सर। हमारे पास जो रेगुलेटरी कंट्रोल है चीज का जब तक न्यूक्लियस में फोकस है, डीएनए में यहाँ पे फोकस नहीं है। उसके बाद सर हमारे पास इन डीएनए की प्रॉपर्टीज लाइक अगर वायरल फैक्टर यूज करें तो उनकी प्रॉपर्टीज ये है कि हमारे पास ये पॉइंट ठीक है। आरएनए सर वो हमारे पास जो है वो आरएनए पॉलीमरेजेस जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डी यूज कर सकते हैं। राइट अच्छा वाला पॉइंट वैलिड है। इसके साथ एक और बात बताता हूँ, ये भी देखें और फिर इसमें सोचिएगा ऑल ऑफ यू एंड देन वी कैन डिस्कस इट। जो इसमें मेरे पास एक पॉइंट है, दिस इज एक्चुअली द सिंगल प्योर कॉपी ऑफ द एक्सोजेनस डीएनए। Normally it happens when we integrate the DNA into the genome or when we form the stable, when we do the stable transfection. जरूरी नहीं है कि अगर हमने 100 सेल्स को टारगेट किया तो 100 के 100 सेल्स के अंदर जीन इंटीग्रेशन हो जाए। नॉट पॉसिबल। अगर हम 100 सेल्स को टारगेट करें इट माइट पॉसिबल 50 के अंदर इंटीग्रेशन हो जाए, और देन इन द सेकंड स्टेप वी हैव टू स्क्रीन आउट द सेल्स व्हिच हैव द इंटीग्रेटेड फॉरेन जीन। These steps that will reduce the number of transfected cells. तो इस वजह से जब number of transfected cells reduce होंगे, ultimately we will having the low expression जो हम expect कर रहे हैं। हम expect कर रहे हैं कि हमने 100 cells को transfect कर दिया तो expression level ये होना चाहिए, लेकिन उसके बाद चूंकि पूरे cells के अंदर ना तो transfection हुई, वो कोई 50% हुई, आपने दूसरा पैथड यूज किया कि आपने transfected को non transfected से separate करना, screen out करना। उस स्क्रीनिंग में आपको सेल मिस होंगे तो हो सकता है कि फाइनली जो आप सेल गेट कर सकें जिसका एक्सप्रेशन लेवल ऑफ नोट का है 30। दिस केस दिस सिनेरियो इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रांजिएंट ट्रांसफेक्शन। यस दिस वन इज डिफरेंट बिकॉज़ इसके अंदर जीन इंटीग्रेशन का स्टेप मिसिंग है, एडिशन स्टेप ऐड हो गया। तो एक ही हो रही है ना, हो रही है स्टेबल भी हो या ट्रांजिएंट हो, तो ट्रांसफेक्शन बट द सेकंड स्टेप इज द इंटीग्रेशन इनटू द जीनोम, दैट इज मोर डिफिकल्ट। उसमें वो नहीं है। ये तो प्रैक्टिकली बेस्ड है कि अगर आप ऐसे टेक्निक आ जाए जो मतलब एक्सप्रेशन है वो टाइम कोई भी टेक्निक 100% हमारे पास स्टेबल ट्रांसफेक्शन को शो नहीं करेगी अभी तक। ऐसा है नहीं, ये तो है सर। आई थिंक एक्सप्रेशन लेवल जो है ना वो हम कब कहते हैं जब ट्रांसफेक्शन हो चुकी होती है, उसके बाद एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। ओके, आप इस लेवल पे दोनों कंपेयर नहीं करना चाह रहे। अगर आप नेक्स्ट स्टेप पे कंपेयर करना चाह रहे हैं तो मुझसे वाला पॉइंट जो है वो शेयर कर सकते हैं। इसका इजी होता है, बहुत सी जीनेटिक चीजें जो ना सेल के अंदर आती ना ड्यूरेबिलिटी मैट्रिक्स से कंट्रोल कर लेती है। जैसे मैं थोड़ी देर बात करता हूं आपसे वायरस जब जैसे अपना जीनोम में इंसर्ट करते हैं अपने होस्ट जीन के प्रोटीन फेज के अंदर, तो होता है कि बैक्टीरियल फेज जो उसका डीएनए में इंसर्ट नहीं करते,
और कहाँ पे रहते हो रेस्ट में, तो ऑटोमेटिकली वो अपनी कॉपी करना शुरू करता है, एक जीन आता है अपनी कॉपी करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन करता है, मतलब कि कुछ जीन ऐसे होते हैं जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म जैसे राइबोसोम हो गया, प्रोटीन ये कंट्रोल कर लेते हैं, इसलिए भी यहाँ पे स्पेशल आ सकता है इन केस ऑफ ट्रांसजेंट। हाँ यस, ठीक है। तो दी फिर ये से पूछिए एक्चुअली कमरान हसन कुछ हमारी डिस्कशन के बाद there are certain points that can be the reason for the low expression level in the form of stable transfection और जो हमारे पास उसमें जो हमारे पास ट्रांजिएंट ट्रांसफेक्शन है इसके अंदर हमारे पास एक्सप्रेशन लेवल थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, उसकी कुछ रीजन है जो हमने डिस्कस की हैं। इसके अलावा this was next इसके अंदर stable transfection that require both effective DNA delivery and a way to select cells that have acquired the DNA। तो इस जब तक हम effective screening method use नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे अगर आप देखें तो वो कुछ प्रोकैरियोट्स में करते होते blue white staining, तो वो that was there to find out the cloned cells। इसी तरह की स्क्रीनिंग टेक्निक हमारे पास इसमें भी है। तो अगर हम स्क्रीनिंग टेक्निक हमारे पास इतनी एफिशिएंट नहीं है कि वो उन सेल्स को स्क्रीन आउट कर सके व्हिच हैव एक्वायर्ड द डीएनए, तो इस केस में हमारे पास वो सेल्स व्हिच हैव एक्वायर्ड द डीएनए वो भी बिल्कुल लॉस होने के चांसेस हैं। और इसके बाद अल्टीमेटली हमारे पास जो एक्सप्रेशन लेवल है वो डिक्रीज करेगा। ओके खदीजा? यस, उसमें स्क्रीनिंग है बट उसमें देखिए उसमें हमारे एक मेजर स्टेप है द इंटीग्रेशन इनटू द जीनोम, ये नहीं है। सो उसमें सारी चीजें जो है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उसमें स्मूथ है, और इसके जो एरर के चांसेस उतने ही कम होते जाते हैं, ठीक है। सो इन दिस केस वी हैव टू गिव मोर लेबोरियस, वी हैव टू यूज मोर लेबोरियस टेक्निक्स, एंड उसमें हमारे पास जो स्क्रीनिंग की एफिशिएंसी है वो भी कम होती चली जाएगी। इस वजह से एक टर्म इस्तेमाल हुई है कि स्टेबल के अंदर जो एक्सप्रेशन है जीन से हमारा कम होती है। सर मुझे बताया सर ये एक बार मतलब पहले मार्केट हम मॉलिक्यूल पढ़ी हो गया वो इसलिए सर तुमने कहा था कि हम हमें दो कंडीशन थी, या तो जो जीनोम होता है हमारा सेटल होता है, या वो न्यूक्लियस क्या होता है, तो इसकी करके सेलेक्टिव करते हैं स्क्रीन, ये दो अलग टेक्निक है। इसके जरिए हम ये फाइंड कर सकते हैं कि हमारा जो जीनोम है वो न्यूक्लियस में गया के बाद सेटल करना है। ठीक है, ये हमने पढ़ा। सो दिस विल बी द रीजन यू आर राइट। कार्डियो की केस में प्लेस पॉइंट ये भी ऐड करके
Okay, Ji. So today we are going to start the next one, that is plant tissue culture. Plant tissue culture में हम बहुत सारी इसकी types पढ़ेंगे. For example, you know that plants with the different parts, root, protoplast, embryo, callus, and different parts से हम cells को start कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे अब इसको start करने से लगेगा कि हाँ, और आपको एक और बात भी पता है कि प्लांट सेल्स आर द टोटिपोटेंट. तो इसका मतलब है अगर आपके पास शूट का सेल है, यू कैन रीजनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम हियर. दे आर टोटिपोटेंट. तो इस केस में हमारे पास एनिमल्स के केस में ये सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट होगा. इसकी एप्लीकेशंस मोर ब्रॉड होंगी क्योंकि ये सेल्स ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं. टोटिपोटेंट फ्लेक्सिबल. अब इसमें अगर आपके पास आ गया है कोई इफ यू हैव अ रूट सेल, you can use it to regenerate a whole plant. If you have a shoot cell, you can use. If you have even an embryo, उसको भी आप manipulate कर सकते हैं. Even by providing the growth hormones differently, you can initiate the root formation और shoot को आप stop कर सकते हैं. ऐसा हो सकता है. आप shoot formation को पहले start करवा सकते हैं root generation से पहले, या root it's up to you. इसके अलावा callus culture. अगर हम उस callus cells हैं, callus देखो. अनडिफरेंशिएटेड मैसिव सेल नॉर्मली जो नेचुरली देखने में आता है जब भी किसी प्लांट पे टिपिकल प्लांट पे जब वुंड लगता है तो उसके ऊपर वो वुंड के ऊपर वो बन जाता है एंड दैट इज यूजुअली कलरलेस. और if we have the callus, we can grow this callus into the tissue culture medium and हम उसको ग्रोथ हार्मोन देंगे, उसकी रूट जनरेशन होगी, शूट जनरेशन होगी, we can do it. Secondly, we can take the plant from the soil and we can shift it into the plant with the medium. It is simple nowadays. तो plant tissue culture में हमारे ये चीजें आती हैं. इसके अलावा protoplast fusion. If we remove the cellular wall and if we form the protoplast of a plant cell, we can fuse two protoplasts around each other. एक species का दूसरा second species का. हम उसको fuse करवाएंगे और उसमें multinucleated cell develop होगा and we can have both properties in one cell. Protoplast fusion. इसके अलावा प्लांट सेल्स के सस्पेंशन कल्चर्स में भी बात करेंगे. जैसे एनिमल सेल्स में हम देखें सस्पेंशन कल्चर, इसके भी सस्पेंशन कल्चर डिस्कशन करेंगे. यहाँ पे जो हम प्लांट टिश्यू कल्चर मीडियम पढ़ेंगे, उसके मीडियम के जो इंग्रेडिएंट्स होंगे नाइट्रोजन, कार्बन एक्सेट्रा, हम किस फॉर्म में देते हैं और अगर हम फॉर्म चेंज करते हैं, मिसाल के तौर पे वी आर प्रोवाइडिंग द नाइट्रोजन इन द फॉर्म अमोनिया एंड द नाइट्रेट. अमोनिया कब देना है और नाइट्रेट कब देना है. If we provide the nitrogen more in the form of ammonia, it could be toxic in some cases. ये बात भी करेंगे इसके अंदर. इसके अलावा हम ये भी इसमें देखेंगे कि growth regulatory जो hormones हैं उनका क्या रोल है. And because you know that oxygen, gibberellin, cytokinin, I know you know. And all of these hormones they have their positive role in it. इस पे बात हम इसमें करेंगे. इसके अलावा यू आर फेमिलियर विद इट. अब हमारे पास जो मार्केट के अंदर वेजिटेबल और फ्रूट्स की वैरायटीज आ रही हैं, दीस आर प्लांट टिश्यू कल्चर फ्रूट्स. प्लम और पता नहीं क्या क्या मार्केट में आ रहा है जिसकी स्टोरेज लाइफ बहुत ज़्यादा है. दो चीज़ें मिक्स कर दी गई हैं. अब मार्केट में पिछले 5-1 साल से एप्रिकॉट काफ़ी बड़ी खुबानी बड़ी आ रही है, आलू के साइज की. उसका शायद टेस्ट नहीं रहा, लेकिन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए दे हैव डेवलप्ड इट. बट खुबानी वही है जो वहाँ पे खाई जा सकती है, वो इधर ट्रांसपोर्ट भी नहीं हुआ करती. तो स्टोरेज लाइफ इसकी ज़्यादा है. So, ये कुछ एप्लीकेशंस के बारे में इंशाल्लाह हम इसमें बात करेंगे. So this was the overview for the plant tissue culture that we would be discussing in the next class, next coming class up to the final. तो इसमें हमें प्रेजेंटेशन भी मैनेज करनी होगी. This is the 5th week. टाइम बहुत देर से जा रहा है and I'm surprised this is the 5th week and we have to manage all the quizzes, all the formalities. The possibilities of lockdown. ठीक है, तो we would be doing that. अच्छा, इसमें प्लांट टिश्यू कल्चर चूंकि अब हम स्टार्ट करने लगे हैं तो आप एनिमल टिश्यू कल्चर से आप लोग फेमिलियर हो गए हैं. अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट हैव द लैब हियर, सो मैं आपको हैंड्स ऑन फेमिलियराइजेशन नहीं करवा सकूंगा. मैं सिर्फ उसी की बात करूंगा. अब जहाँ पे अब इन टॉपिक्स में भी बातें आएंगी एनिमल की, तो मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन के साथ देता जाऊंगा. ठीक है. आई होप एंड आई विश कि आप कभी अगर कहीं इंटर्नशिप करें, कभी कहीं जॉब करें या आप डॉक्टरेट करें या पोस्ट डॉक्टरेट की किसी बहुत अच्छी लैब में ब्रॉड चले जाएं, शायद आपको टिश्यू सेल कल्चर की ट्रेनिंग जो है वो आप यूज करें, तब आपको ये बेसिक बातें समझ आएंगी.
तो plant tissue culture according to definition that is actually the growth of the plants in vitro. So this is in vitro growth under the aseptic and controlled environment. Here, aseptic and controlled environment in the form of liquid media or in semi-solid. याद रखिएगा, plant tissue culture के लिए media solid नहीं हुआ करता, इसलिए semi-solid है. आपको याद होगा when we prepare the end broth, nutrient broth for the prokaryotes, and when we add the agar into it, agar उसको solidify कर देता है. Here we use the semi-solid media, not the solid media, because you know that semi-solid है, roots ने grow करना है, and the roots has to exchange the oxygen. So हमें semi-solid चाहिए होगा, इस पे बात करेंगे. And well-defined nutrient medium for the production of primary and secondary metabolites or to regenerate the plant. So this is the definition that the growth of the plants in vitro condition, controlled environment. In other words, there is an experimental technique through which a mass of cell is produced from an explant tissue. Explant is a tissue that is you cut from the natural plant and you use to regenerate the cell into the in vitro. That piece would be called explant. Okay, Sajid? Explant. And the callus produced through this process can be utilized directly to regenerate plantlet or to extract or manipulate some primary and secondary metabolites. So हम explants को basically use करेंगे callus generation में, और फिर हम उस callus generation के साथ आगे मज़ीद हम techniques हम involve करते रहेंगे. And this one, plant tissue culture that refers to the cultivation of plant which normally forms a multicellular tissue. खास तौर पे वो plants जिनका multicellular tissue develop करते हैं, हम उनको जब in vitro grow करवाते हैं तो हम उसको refer करते हैं this is the plant tissue culture या इसको PTC भी कहा जाता है. When grown on an agar medium, the tissue forms a callus or a mass of undifferentiated cells. The technique of cell culture is convenient for studying and maintaining cell lines, as well as for studies pertaining to organogenesis and meristem culture. So this one is important to study the meristem cultures and to study the organogenesis, because when the plants will form organs, for example shoots and roots, उसकी study में और जितनी भी हमारे पास ये स्टडी आज मौजूद है कि साइटोकाइनेसिस और जिब्रेलिनेसिस कौन सी रूट जनरेशन में इन्वॉल्व है, कौन सी उसमें शूट जनरेशन में किसको पहले देना है, दिस इज जस्ट ड्यू टू दिस प्लांट टिश्यू कल्चर. इससे हम ऑर्गेनोजेनेसिस में ग्रोथ रेगुलेटरी हार्मोन्स का रोल हम फुली स्टडी कर चुके हैं एंड we are very comfortable with it. Now we can regenerate the plants into the lab by providing the hormones in varying concentration. Okay? And the technique of in vitro cultivation of plant cell or organ is primarily devoted to solve two problems, not consider problems, to keep the plant cells or organs free from microbes. Lab के अंदर हमने अभी पिछली स्लाइड पे टर्म यूज की है the growth of the plants into aseptic conditions. Okay? So it means that we have to make the plantlets or the plant regenerating plant free from the microorganisms. You know, when they are growing into the environment, they are prone to risk for the viral attacks and the microbial attacks and multiple viral diseases of the plants they have imported. To ensure the desired development in cell and organs by providing suitable nutrient media and other environmental conditions. तो अगर हम कोई fruits या vegetable plant को grow करवा रहे हैं and we want to get the maximum production of it, तो environmental condition में शायद ये इतना possible नहीं है, because environment को हम control नहीं कर पा रहे. So हम अगर उसी प्लांट को उठा के ला के अपने पास ग्रो करवा लें उसमें प्लांट टिश्यू कल्चर में एंड उसको अपने लैब के अंदर, तो we can control all the lab environment, so we can maximally produce our product. So it means that जो हमारे पास हम प्लांट टिश्यू कल्चर में प्लांट ग्रो हो रहा है, that is free from the risk to the from the attack of microbes, एक बात पैथोजेंस के, और दूसरा हम एनवायरमेंटल कंडीशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो ये आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो हो रहा है और हम न्यूट्रिएंट्स को भी कंट्रोल कर रहे हैं. सपोजिंग इफ वी नो दैट बाय इंक्रीजिंग द मैग्नीशियम इनटू द मीडिया दैट विल गिव द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ द फ्रूट, वी कैन इंक्रीज द मैग्नीशियम. बट सॉइल के अंदर ये डिफिकल्ट है, नॉट too easy as this one is the plant tissue culture. So these are the two problems that we are actually tissue culture, और इस केस में we have to maintain. Advantages की एक मिनट है, advantages की थोड़ी सी बात करेंगे. Yes, पूछ सकते हैं. सर ये एज मीडिया के ऊपर ग्रो कैसे करते हैं? Not solid. So ये है क्या? Semi solid मीडिया, उसके अंदर प्लांट जो है उसकी रूट्स आ गया है, मूव कर गया है, और जो अपर पोर्शन है मीडिया के बाहर उसके ऊपर
हमने पढ़ा था एक ब्रॉथ, एक पढ़ा था हमने सॉलिड। सॉलिड एगर होता है, फ्लेवर हार्ड होता है। सेमी सॉलिड ना ब्रॉथ ना एगर, उसके एगर की क्वांटिटी कम है, बट एगर की बजाय हम दूसरी चीज यूज करते हैं, जेलाटिन या जेलाइट यूज करते हैं उसके अंदर, ताकि वो सॉलिड्स की पॉलीमराइजेशन इतनी टफ ना हो। इतनी टफ होगी तो रूट्स नहीं मूव कर सकेंगे। रूट्स रिक्वायर्ड एयर स्पेस रेस्पिरेशन। ऐसा नहीं किया, समझ नहीं आया इसको। आ जाएगा सर जी जी जी। इन केस ऑफ प्लांट्स के सिंथेटिक रिलेशन टू द माइक्रोब्स, उनके केस में भी हम लोग इसको एसेप्टिक कंडीशंस में देंगे। सॉरी आई डोंट गेट जैसे लेग्यूम्स है, हाँ लेग्यूम्स को सेटल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सिंथेटिक कंडीशंस चाहिए होती है माइक्रोब्स के साथ। हाँ तो सर जब हम लेग्यूम्स को अगर कल्चर कर रहे हैं, हाँ, उस कंडीशन में हमने हम उसमें कंट्रोल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक्सपोज करते हैं इसको, ठीक है। ओके जी, ये देखें जी, ये मैं आपको पिक्चर दिखाना चाह रहा हूँ। दिस वन हियर, इसके प्रोसेस है सिर्फ अभी ये अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं होना था, लेकिन ये दो जो क्वेश्चन आए मुझे लगा कि मैं इसको शेयर कर दूँ। हियर आफ्टर ग्रोथ, अगर मैं आपको यहाँ पे यस, अगर मैं इसी को दिखा सकूँ, दिस इज द सेमी सॉलिड मीडिया। ये टेस्ट ट्यूब है, सिर्फ टेस्ट ट्यूब है, और उसमें ट्यूब के अंदर सेमी सॉलिड मीडियम के अंदर रूट्स हैं, एंड ऑन द अपर सरफेस द शूट। द प्रोसेस क्या है? सिंपली दे हैव टेकन द एक्सप्लांट फ्रॉम द प्लांट, उसको स्टेराइल किया है, जो कि एक अच्छा खासा टास्क है। एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड, एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड के साथ इसको इनोकुलेट करेंगे कल्चर के अंदर, इट विल ग्रो। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस देखने में आएंगे, देन वी विल शिफ्ट इनटू द लार्जर जार्स, और यहीं से फिर बड़े-बड़े इसके जो हमारे पास ये देखें यहाँ पे हमारे पास बड़े-बड़े जो स्टैंड पूरी सेल कल्चर लैब्स वगैरह हैं, जो कि एग्रोनॉमिस्ट जो हैं हमारे साथ, जो प्लांट टिश्यू कल्चर एक्सपर्ट्स हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। हाँ सर यहाँ पर उसने सेक्शन में नहीं होती, लोगों से सेगमेंट दिया होता है, इसका मतलब कोई हम एक्सपेंड लेके हम प्लांट ग्रो कर सकते हैं। हाँ हम कर सकते हैं, लेकिन पहले को स्टीराइज करना पड़ेगा प्लांट को। हाँ बिल्कुल। वो कैसे? हाँ, उसकी स्टेरिलाइजेशन के लिए चूंकि हमारे पास फंगल और बैक्टीरियल इशू है, उसके मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, वो पढ़ेंगे। ऑटोक्लेव कर दो। नो हम पढ़ेंगे, उसको ब्लीच के साथ ट्रीट करना है, उसको ब्लीच से उसको मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ ट्रीट करना है, कितने 5 मिनट के लिए, फिर सुबह वॉशिंग करनी है, फिर स्टेप्स बताऊंगा मैं आपको। तो एक्सप्लांट, चूंकि कोई भी सेल है प्लांट का, वो टोनिकोटाइल है, दैट कैन कन्वर्ट दैट कैन रीजनरेट द शूट्स एंड रूट्स। तो हम कोई भी प्लांट का यूज एक्सप्लांट को रीजनरेट करवा सकते हैं, बट चूंकि वी हैव टू गेट रिड ऑफ कंटामिनेशन, तो ये स्टेप्स हमारे पास तो उसमें मर्क्यूरी क्लोराइड, ब्लीच और ये सब हैं, वो हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह से पहले किस स्टेप से पास करते हैं, किस के अंदर हम गॉट इट। अच्छा सर जो एक्सप्लांट है वो प्लांट किसी पोर्शन से ले delicate, any delicate portion, not the good one. ठीक है, अच्छा। So next one, that are the advantages of the plant tissue culture. The availability of the raw material, the fluctuation in supplies and quality, new methods for the isolation. इसके अलावा हमारे पास बायो ट्रांसफॉर्मेशन, डिजीज फ्री एंड डिजायर्ड प्रोपेग्यूल। इसके अलावा बायोसिंथेटिक पैथवेज को स्टडी करने के लिए, इमोबिलाइजेशन ऑफ सेल्स के लिए, कंटिन्यूस यूनिफॉर्म बायोमास प्रोडक्शन के लिए, मेडिसिनली इंपॉर्टेंट प्लांट्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए, नेचुरल कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करवाने के लिए, एंड फॉर द इम्प्रूवमेंट इन द मेडिसिनल प्लांट स्पीशीज एंड फॉर द प्रोपगेशन ऑफ द प्लांट्स विदाउट सीड। There are certain plants in the market which do not have seeds artificially. पहले तो पार्थेनोकार्पिक से grapes और banana थे. Now there are certain other plants which do not have seeds, या अगर seeds minimize हो गए, for example watermelon, seeds बहुत कम हो गए हैं, और these are the reasons for this. अभी इनको पढ़ते हैं. Availability of raw material. Some plants are difficult to cultivate and are also not available in abundance, and tissue culture technique is considered a better source for regular and uniform supply of raw material for medicinal plants industry for the production of pharmaceuticals, phytopharmaceuticals. बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, जो बहुत सारी herbs which are important medicinally, उनकी supply बहुत कम है और उनकी demand बहुत ज़्यादा है pharmaceuticals में, industry में, और वो बहुत सारी industries का raw material है. So to grow them properly, we are using the plant tissue culture. We are producing that herbs which are required to grow the plant properly, and we are providing it
तो इस केस में प्लांट टिश्यू कल्चर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. इट इज मेकिंग अवेलेबल द रॉ मटेरियल फॉर द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फाइटोफार्मास्यूटिकल्स. Fluctuation in the supply and quality, the method for the production of crude drugs is available in the quality due to changes in climate. And you know that whenever we are producing any pharmaceutical in the industry, it could happen. कुछ herbs जो हैं वो winter season में आपको available हो, कुछ हैं वो summer season में available हो. तो अब तो supply का फर्क होगी. 6 महीने मिलती है supply, 6 महीने नहीं मिल रही. This case में we have to make the supply continuous. Fluctuation को decrease करने के लिए we are taking measure and we are using this plant tissue culture. और उस केस में हमारे पास ये बहुत important है. For example, there are certain plants which are affected by the climatic conditions which are affected by the diseases and the crops or seasonal changes in this case. New methods for isolation. It is possible to obtain new methods for isolation and newer compounds from plants by this technique, and for which patent right can be obtained. तो इसमें बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने have introduced, बहुत सारी न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने have introduced some supplements. तो अगर उन्होंने प्लांट टिश्यू कल्चर से प्लांट को ग्रो करवा के सप्लीमेंट्स को obtain किया, they can have their patent. और आप उसको रीग्रो नहीं करवा सकते आप जब तक उनके पास पेटेंट है. तो ये इसमें पेटेंट हमारे पास बेनिफिट्स हो सकते हैं प्लांट कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू. पेटेंट समझते हैं? और पेटेंट कितने टाइम के लिए हुआ करता है? 30 years. Biotransformation, that is a process through which the functional group of organic compounds are modified by living cells. और इसमें reactions are feasible using plant tissue. Biotransformation, ये अगर आप इसको उस point of view से देखें, bioremediation point of view से, तो environmental pollutants को decrease करने के लिए हमने पढ़ा था कभी किसी ज़माने में कि we are using the microorganism, but still we can use some plants. हम इनको भी use करवा सकते हैं, हम plants को भी plants को modify करवा सकते हैं, which can be used to contaminants के अलावा और किसी भी कंपाउंड की बायोट्रांसफॉर्मेशन के लिए देते हैं हेल्पफुल. Disease free and desired propagule. Large scale production of plant with disease free and desired propagule will be stored and maintained without any damage during transportation for subsequent plantation. Plantation के लिए seeds चाहिए होते हैं, plantation के लिए आपको plants चाहिए हैं, क्योंकि जैसे ये nursery farms हैं उसके लिए पूरा सेटअप. बिल्कुल इसी तरह से हम disease free और desired species को propagate करने के लिए we can create a propagule, small test tubes. We can take the test tube from any collection center and then we can leave. और मजे की बात होगी तो मुझे propagule होगा that will be free of the contaminants. ठीक है? Disease free. Biosynthetic pathway. Tissue culture can be used for tracing the biosynthetic pathway of secondary metabolites using a labeled precursor in the culture medium. We can use the labeled precursors. For example, जब हमने कभी किसी ज़माने में, बहुत पुरानी बात है, ये relevant बात है, लेकिन आपको समझ आ जाएगी. Measles and Stark experiment पढ़ा था. They use the radio labeled nitrogen and radio labeled phosphorus to identify that either DNA replication is semi-conservative or conservative, and then they identified this as semi-conservative. So this is just like that. We can identify the metabolites and the secondary metabolites and their precursors by giving the labeled raw material into the medium. So Daniel experiment भी है, इस ज्यादा element है जिसमें उसने कार्बन सोर्स को डिस्कवर किया था कि वो वाटर के अंदर. बिल्कुल ठीक है. Immobilization of cell, that means यार मेरी बात सुनो, बोल मैं रहा हूँ, पानी की जरूरत आप लोगों को पड़ रही है, ये कैसे हो सकता है? दे इसको, पियो पानी, अच्छी तरह पियो. इस जरूरत होती है ऐसा मुझे. अब मैं नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ, मुंह पे चढ़ा के पियो. ओके, मैं इस तरह मत किया करें. If you need, you can have your own bottle. हमारे एक सर, मैंने पहले भी बात सुनाई थी, बड़े सख्त हुआ करते थे. तो उनकी एज इतनी ज़्यादा थी कि हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो थी, शी वाज नियर टू रिटायरमेंट और उनसे पढ़ी हुई थी. सर को 85 करते हैं, वो बहुत गुस्सा करते हैं. तो हम बैठे क्लास में, किसी एक लड़की ने एक दफ़ा पानी की बोतल खोल कर पी ली. माइंड मतलब आप घर पर बैठी हुई हैं, बोल रहे ना और पानी की जैसे दैट. तो मैं ये नहीं कह रहा, ये मैं मुझे सिर्फ इतराज़ से मांगना जो है मुझे डिस्टर्ब करता है, अदरवाइज आई एम फाइन. तो उसने दिया है मांग के, लेकिन उसने महसूस नहीं होने दिया. अच्छा, immobilization of cells. Tissue culture can be used for plant preservation by immobilization.
of cells, further facilitating the transportation and biotransformation. You can immobilize the cell in the form of plant tissue culture. अगला continuous unit immobilization of the cell. पढ़ेंगे ना इसको. Tissue culture can be used for plant preservation by immobilization or the entrapment. You have entrapped the cell in the medium. You have immobilized the cell. उसके बाद आप cells को transport कर सकते हैं. उसके बाद आप cells को properly use कर सकते हैं biotransformation purposes के लिए. Okay, by immobilizing the cell, by immobilizing the growth. अगला है इसमें हमारे पास the continuous and uniform biomass that may obtain, which is you have all the controlled environment and you're producing the continuous and the uniform biomass. Medicinally important compounds can be synthesized by which cannot be synthesized chemically. वो हम यहाँ से produce कर सकते हैं. Useful natural compounds can be produced which are independent of soil conditions and change in climatic conditions. So independent हम उसको produce कर सकते हैं. इसके अलावा improvement of other medicinal species and propagation of plants without seeds as defined in defined and controlled conditions. तो जो हमारे पास बहुत सारे plants varieties ऐसी आ रही हैं which are seedless and even जो उनके seeds अगर हैं भी उसमें छोटे से तो they are unable to regenerate a plant plant. ठीक है. तो ये commercial point of view से this point is important. If a company has if a company has managed their new species of plant, तो आप ये अगर कंपनी ने इतना उस पर खर्च कर दिया है फिर तो कंपनी का नुकसान है ना कि एक दफा मार्केट में आ गया फ्रूट तो आप अगली दफा उसी के सीड से यूज करना शुरू करते हैं ग्रो. नाउ दे हैव प्रोड्यूस्ड द सीडलेस प्लांट्स. आपको हमेशा उन्हीं से सीड वापस लेने पड़ेंगे, उन्हीं से लीफलेट्स लेने और प्लांटलेट्स लेने पड़ेंगे तो रीजनरेट करना कमर्शियली. इवन Monsanto, Syngenta, there are certain other companies में मतलब कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से नाम नहीं लेना चाह रहा कुछ, तो ये बहुत कॉमन है. दिस इज पेटेंट है इनके पास है. एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सी कॉर्न स्पीशीज हैं, बहुत सारी हमारे पास वैरायटीज हैं, पोटैटो की वैरायटीज हैं जो कि हर दफा कंपनी से ही सीड देना पड़ता है. दैट्स सर्टेन. और फिर उसके और भी बहुत सारे पॉइंट हैं. ठीक है जी. सो नेक्स्ट वन दैट इज सम डिसएडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर में हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज आर रिक्वायर्ड. इसमें इतने कंटामिनेशन आती है कि अब इसको प्लांट टिश्यू कल्चर that media, the media you are using to grow the plants, that media is enriched with the nutrients, all the nutrients. Every pathogen has ability to grow in it, fungal and microbacterial. ठीक है. इसके लिए high level expertise required है. Fully trained बंदा इसको कर सकता है. हमारे डिपार्टमेंट में 2012 या 13 में एक खातून तो मैं उन्हें आपको कह रहा हूँ, she was an MS student, she discovered, she did रोज की वैरायटीज उन्होंने फ्यूज करवाई थी और उससे पता नहीं मुझे याद नहीं पूरा करता, कुछ रोज स्पीशीज नई प्रोड्यूस हुई थी. उसमें शायद खुशबू ज़्यादा थी और कलर भी उन्होंने चेंज किया था, जैसे किया था. अब उन्होंने बाद में पेटेंट लेने की भी कोशिश की. उस काम के लिए उनको मुझे याद पड़ता है कि 2 साल लगे थे. MS लेट हुआ था उनका और हाई लेवल का एक्सपर्टीज आर रिक्वायर्ड फॉर दिस. और इवन उनकी जो सुपरवाइजर थी, शी वाज एन एक्सपर्ट इन इट. बाद में सुपरवाइजर का मर्डर हो गया और फिर वो एक अलग सीन चले, लेकिन इस केस के हाई लेवल का एक्सपर्टीज आर रिक्वायर्ड टू हैंडल दिस. अच्छा. A small error may lead to complete collapse of the product or the plant. Lots of chemicals are required for plant tissue culture medium, which must contain high purity. हम जब भी बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमें टिश्यू कल्चर ग्रेड केमिकल चाहिए. For example, you are using the ammonium or you are using the magnesium phosphate into the lab. But whenever we will use it for the plant tissue culture, we will demand that tissue culture grade that would be highly pure. यहाँ पे purity support नहीं कर सकेंगे, highly pure होनी चाहिए. आप सारी की सारी एक पूरे eukaryotic organism को artificial media में अंदर grow करवा रहे हैं. और इसके अलावा there is no chance for evaluation of nutrition. Culture on artificial medium may lead to the depression of unusual metabolic pathway, which may not be beneficial to biotechnologists. और जो हमारे पास आर्टिफिशियल मीडियम पे अगर हमारे पास कोई अनयूजुअल मेटाबॉलिक पाथवे डिप्रेस हो गया है तो वो हमारे बेनिफिट का हमारे नुकसानदेह भी हो सकता है. If we are intended to enhance that pathway but that was depressed.
In majority cases, amount of secondary metabolite produced is negligible. तो plant जब grow कर रहे हैं artificial medium में, they are producing certain secondary metabolites. But in certain cases, these secondary metabolites are negligible because यहाँ पे हमारा जो है वो बाज़ का जो target है वो plantlets को grow करवाना है. Not we are focusing on the secondary metabolites. So secondary metabolites are negligible. और फिर हमें अगर हम इसी plant tissue culture को use करके हम secondary metabolites को produce करवाने के लिए तो इतनी कम amount में produce हो रहे हैं कि वो उनको enhance करवाने के लिए we have to make an extra effort. ठीक है? बाहर अब्दुलरहमान बैठा होगा, उसको कोई शोर कम करवा कमरान को उसको कहना कि प्लीज इस तरह बात कर रही हैं. The protocol of individual plants differ very widely and change in the medium constitution, environmental parameters affect the rate of cell growth and accumulation of secondary metabolites. ठीक है, तो हमारे पास जो medium composition है, environmental factors हैं, ये widely change भी होते हैं. Constituents बनाते हुए अगर आपसे वेरी कर गया ultimately हमारे पास जो plant net regenerate हो रहा है, it will affect it directly, इसको affect करेगा. To maximize on the cell mass, produce the cell suspension culture eventually become very dense, and these presents problem of even aeration. तो जब हमारे पास जनाब cell mass produce हो रहा है, if that is dense, in case of density increase, we can have the problem of aeration. Proper aeration, you know that they have to respire. अच्छा, instability है इसमें, slow growth process, it will take time, इसकी incubation rate, incubation time काफी ज़्यादा है. फिर expensive process है, expensive जो हमने कुछ lab requirement पढ़ी थी animal cell culture के लिए. इस केस में जो हमारे पास incubators हैं, incubation rooms हैं, they are very expensive. For example, in our department in the Punjab University, we had a plant tissue culture medium incubation room with that of this size, and that was the climatic control up to 37 degrees centigrade throughout the year. If the winter season is there, you are using 4 ACs. अगर सर्दियाँ आ गई हैं तो you are using 3 to 4 heaters to automatically maintain the 37 degree centigrade temperature. This is very costly. तो इन तरह की सिचुएशन है. ये एग्जांपल दिया मैंने एक्सपेंसिव. इसके अलावा जो हमारे पास मीडिया के एक्सपेंसेस हैं, all you need all the nutrients in the pure form. और उस केस में उतनी ही हमारे पास बढ़ती चली जाएगी कॉस्ट, और you have to avoid the contamination cost only. This is very costly, expensive method. Aseptic conditions are to be maintained throughout the growth of the plant. और ऐसा नहीं है कि आपने प्रोसेस स्टार्ट किया है तो आपने aseptic conditions दे दी हैं, उसके बाद कोई परवाह नहीं है कि इस रूम के अंदर आपने incubate कर दें. हो किसी भी टाइम पे उस मीडिया के अंदर कंटामिनेशन आ सकती है. So from the initiation of the process to the cultivation of the plant, you have to provide the aseptic conditions, and aseptic conditions को maintain करने के लिए खर्चा करना पड़ता है, आपको filter install करने पड़ता है, उनको 24 रन करना पड़ता है. ठीक है, तो this one is a bit expensive. ठीक हो गया. These were some disadvantages. Yes. There is no chance for evaluation of the sometimes the case में हम जो mutations आती हैं उसको evaluate भी करते हैं कि जैसे हमने MCM में लिया कि ट्रिपल वन के केस में वाला म्यूटेशन है, हम उसको evaluate करके अपने पर्पस से यूज करते हैं, तो ये इस्तेमाल कर लिया बिकॉज़ कुछ भी सेल लगा पर गाइस सेल लगा इससे कोई म्यूटेशन आ जाए तो हम उसको प्रॉपर्ली प्रोकैरियोट से evaluate नहीं कर पाएंगे. Correct? वैसे as compared to animal culture, plant tissue culture ज़्यादा मुश्किल है या हम इस कंपैरिजन में क्यों जाएं? Both of them are sensitive. दोनों के pros and cons हैं. दोनों के लिए expertise required है. लेकिन when I perform तो मुझे लगा कि plant होना मुश्किल है. This much. लेकिन हम इसको क्यों कंपेयर करें? Expertise है तो कुछ मुश्किल नहीं है. You have the available resources, you can do that. But still, what is the time? More time. We have a lot of time. Historical development of the plant tissue culture and the principle of tissue culture were involved. 1838 to 1839, and cell theory advanced by the Sheldon Schwann
वहाँ से इसका बेसिक स्टार्ट हुआ। फिर 1902 ये इसके कुछ वो हैं सेलियन लैंडमार्क्स एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेमोराइज इट, सिर्फ इसको देख लीजिएगा क्योंकि आप उस याद करने के सदमे में इसको देखेंगे नहीं ध्यान से। 1902 में 4 में फिर उसके बाद 22 में 26 में प्लांट ग्रोथ हार्मोन जैसे जैसे हमारे पास डिस्कवर हो रही हैं और उसके बाद हमारे पास क्योंकि प्लांट्स को आर्टिफिशियली ग्रो करवाना है तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये था कि हमारे पास ये पता हो कि देयर इज अ प्लांट सेल इट हैज वी हैव टू ग्रो इन विट्रो कंडीशन व्हाट वी हैव टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स व्हाट एल्स ग्रोथ हार्मोन कौन सी ग्रोथ हार्मोन जो कि रूट इनिशिएट करेगी शूट इनिशिएट करेगी उसका पता होना जरूरी है। तो प्लांट टिश्यू कल्चर इवॉल्व हुआ है ग्रेजुअली व्हेन द न्यूट्रिएंट्स वर डिफाइंड एंड द हार्मोन्स जैसा कि इंडोल एसिटिक एसिड सबसे पहले 1926 में हुई। इसके अलावा in 1934 the white that introduced vitamin B as a growth supplement in tissue culture media for tomato root tip। यहाँ पे मैं कभी-कभी एग्जांपल दिया करता हूँ कि हम 1934 में शायद अभी स्ट्रगल कर रहे थे अपने प्राइमरी एजुकेशन के लिए, हम आज भी यही स्ट्रगल कर रहे हैं। The approach is different and the mode of शायद thinking is different। 1934 में they have developed that tomato root के लिए supplement vitamin B है। मेरा ख्याल है हम आज भी इस एक्सपेरिमेंट को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। I think so we have to change the approaches। मैंने एक क्लास में बात की कि अनफॉर्चुनेटली हमारे Sir, mic just muted. Anyways, फिर उसके अलावा हमारे पास जो 1939 तक बात आई है और फिर जनाब हम उसमें ये मुझे क्यों तंग कर रहे हैं कोकोनट मिल्क का पढ़ेंगे हम जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया को पढ़ेंगे कि हम कोकोनट मिल्क ऐड करते हैं और वो प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया के अंदर क्या क्या रोल प्ले करता है। इट इज प्रोवाइडिंग सर्टेन vitamins and some nutrients to the plants। The coconut milk they discovered that coconut milk can be used to in the cell culture medium for the division initiations। और उसके अलावा फिर 1946 में कुछ इवेंट्स हैं। फिर 1957 में स्कूग एंड मिलर के नाम से स्कूग मीडिया आज भी यूज करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए। यहाँ पे 1957 में अगर आप देखें they have introduced the media plant tissue culture media। हम उस मीडिया को आज भी यूज करते हैं स्कूग मीडिया के नाम से हम पढ़ेंगे उसमें। उसके अलावा Rennett and Stavert they regenerated embryo from callus clumps and cell suspension of Docus carota। ये कौन सा प्लांट है Docus carota? अच्छा फिर 1916 में 1962 66 अब इसमें 1966 में अगर देखें तो Stavert he demonstrated that pluripotency by regenerating carrot plant from single cell of tomato। Interesting। तो ऐसी वजह से अभी कुछ दिन पहले एक जगह पे डिस्कशन हो रही थी तो नाउ इट इज वेरी कॉमन सिंगल प्लांट है वो नीचे पता नहीं शिमला मिर्च दे रहा है और ऊपर वो कुछ और दे रहा है सिंगल प्लांट। दिस इज द कॉमन। और इसके बाद मोरेशिस एंड स्कूप ये एमएस मीडिया इसको कहते हैं, इन दोनों के नाम से है मोरेशिस एंड स्कूप मीडिया। और एमएस मीडियम विद हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन we are using nowadays इनके नाम से and we will discuss it later on in the later sessions। ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर वही रिक्वायरमेंट्स सिमिलर होंगी कुछ जो हमने एनिमल केस में पढ़ी हैं कि हमें इक्विपमेंट चाहिए, ग्लासेस चाहिए, सेप्टिक कंडीशन चाहिए, प्लांट मटेरियल चाहिए जिसको हम एक्सप्लांट कह रहे थे, वॉशिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटीज रिक्वायर्ड है, मीडिया प्रिपरेशन रूम चाहिए, स्टेरिलाइजेशन रूम चाहिए, न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिए, ट्रांसफर रूम चाहिए, कल्चर रूम्स या इंक्यूबेटर चाहिए, हमें प्रॉपर एंड ऑप्टिमम एरिएशन हमें चाहिए है, वेल इक्विप्ड ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग एरिया हमें चाहिए। सो ये इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही सेपरेट चाहिए जो कि हमारे पास डेडिकेटेड होगा।
इसके अलावा अब इन चीज़ों की अलग अलग आएगी, जहाँ पे हम वो बातें नहीं डिस्कस करेंगे जो हमने एनिमल के केस में डिस्कस की, व्हाई वी नीड एसेप्टिक कंडीशन, हाउ वी कैन मैनेज एसेप्टिक कंडीशंस, हम वो बातें डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे। हम यहाँ पे प्लांट मटेरियल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। उसके बाद हम वॉशिंग ऑफ इक्विपमेंट, इस पर भी नहीं जाएंगे। दिस इज वेरी कॉमन कि वी कैन हैव अ डेडिकेटेड वॉशिंग एरिया फॉर दिस एंड वी कैन यूज इट फॉर वॉशिंग पर्पसेस। वाटर प्यूरिफायर क्यों चाहिए हैं इसमें, cell culture study in the water purifier, because we have to remove the maximum ions and that are present in the water. Centrifugation हमें shaker, balance, shelves, scissors, culture vessels, glassware, इसके अलावा miscellaneous में cotton plugs, screw cap bottles, microwave ovens, ये पूरी एक लैब की हमारे पास लिस्ट आएगी जो हमें चाहिए होगी प्लांट टिश्यू कल्चर को स्टार्ट करने में। एसेप्टिक कंडीशंस कैसे मेंटेन की जा सकती हैं, इसमें ब्रोमीन वाटर का इस्तेमाल करेंगे, मर्क्यूरी क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट या एंटीबायोटिक्स। दिस वन कामरान, this one here, solution of chlorine water, mercury chloride, silver nitrate, antibiotics that can be used। ये 1% यूज करेंगे, कितनी देर में इसमें सोक करना है, हम स्टेप वाइज इसको पढ़ेंगे। Got it? So this was about the plant tissue culture medium, and this was the first session about it. So I think we should stop here, and I have to ask question from Mahnoor. She has prepared the question in the previous और उसके बाद हम हैं वो ठीक है जी। Okay, Adin Khan, not here. Afaq Ahmed, you're not here. Alina Batul, she's not here. Amtu Rahman Tuba was sitting here, and Sir, मैं present हूँ, अलीना। Aksa, Present, sir. Aksa Zaman,
Present, sir. फैसल बशीर, प्रेजेंट सर। हाफिजा मारिया उस्मानी राना, Yes, sir. हसन, हवैतब सलीम, हवैतब जुवेरिया इफ्तिखार, जुवेरिया अरशद, जुवेरिया इफ्तिखार, हाँ? और जुवेरिया अरशद, two participants have raised their hands. एक तो जुवेरिया इफ्तिखार है और दूसरी जुवेरिया अरशद। तो ये वाईपीसी बैठी हुई भी है स्पेशली। Okay, and Khadijatul Kubra is here. Laiba, Present, sir. क्लास में भी नहीं थी, मुझे याद करना पड़ा कि आपसे बात करें। She was supposed to come in the last class. लाइबा, आप अपने टाइम पे बच्चे ऑन कैंपस आया करें। मारूफ खालिद, she is kinda out of session. यही वर्ड्स लिखे हैं, यही वर्ड्स लिखे हैं, kinda। मतलब थोड़ा उसको थोड़ा फॉर्मल होना चाहिए। मारूफ खालिद, not here, kind absent. Mariam, Yes, sir. good, and Bilal, ऐसा बोलना। Mohammed Noman Aziz, यस सर। okay, good. Nimra, she was there in the last class. Roha, Roha is not here. Sajjal is मेरा मैं हैंड रेस से बड़ा था हो गया। ये तो कौन है? ये F1063 कौन है? नाम क्यों नहीं आ रहा? आईपीसी में नाम नहीं आता। बाकी जवेरिया बैठी है, उनका नाम है। ये कैसा लॉजिक है? नहीं, आईपीसी मतलब मार्च से आ रहा है, सिग्नल तो नाम नहीं आ रहे पूरे। समय सज्जाद, she's not here. Saulat Nawaz Shah, Shaji, are you there? सर जी सर। Savera is there. Sir, Sarish, present. Yes, sir. सर आपने पिछली क्लास में भी एब्सेंट लगा दिया। नहीं नहीं समैया, आपकी आवाज नहीं आई होगी, अदरवाइज मैं जानबूझ के थोड़ी करूंगा। सर फीफा ने बोला था मेरा माइक ऑफ था। मैंने तो अपनी प्रेजेंट बोली थी बेटा। चलें, इसको मुझे याद करोइएगा अगली क्लास में टेनिस मार करने से पहले। ओके सर, थैंक यू। शहरियार फारूक, यस सर। माइक्रोफोन नहीं चल रहा। शहजादी सखी, शिद्रा नूर, Present, sir. शिमरा, शिमरा, ताबिश, ताबिश is not here. वजीहा अरूज, वजीहा, okay, she has raised her hand. आधी क्लास होते हैं, किस पर ठीक है? वसीका खालिद, ये वसीका को पता? Anyone has contact with her? हाँ? Anyone has contact? नहीं, मतलब इसमें क्यों अच्छे हैं आप लोग? ज़ैन अब्बास, एक बार निकाला मैंने यार इसी हरकत की वजह से। ज़ैनब है यार। Okay जी ख़वातीन, हम start will see you in the next class, hopefully with a good state of mind and health. क्विज़ की तैयारी कर लीजिएगा। रिडक्शन कुछ नहीं होगी, किसी ने कुछ देना है तो आगे दे।